अगर मेरे लिए प्रायोरिटी एक्स चीज़ है तो नो मैटर व्हाट मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा। 24 घंटे सभी के पास है एंड नो वन कैन से कि मेरे को टाइम नहीं मिला। मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलता है। मैं भी अगर बात करूं तो वीक में 7 डेज होते हैं। नॉट एवरी सिंगल डे आई गेट मोटिवेशन। नो मैटर आप सुबह 1 किलोमीटर जा रहे हैं या 10 किलोमीटर जा रहे हैं, एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। हमने एक छोटा सा पुल अप बार लगाया है। जब से हमने लगाया है कुछ नहीं तो लोग लटके तो रहते हैं, राइट। 8 से 9 लोग, करीब 10 लोग कंपनी में ऐसे हैं जो भी 10 पुल अप एक बार में कर पाते हैं। फर्स्ट पुल अप तो सबका हो जाता है जो कि नहीं पॉसिबल था पहले। एंड सो मेक एनी प्रोग्रेस बट मेक वन। इफ यू आर लीडिंग द टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी फिट. If you want them work, they will definitely look towards you that whether my leader is fit or if he is saying something to us to do, is he capable of. If you are literally committed, if you are really hard working, no matter what, chota, bada, anything, any platform, you will be recognized one day. Hello everyone, this is Vikas and you are listening to or watching Run with Fit page. पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने अलग अलग चीज़ें डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल कीरा सदरलैंड से हमने बात की मैराथन न्यूट्रिशन के बारे में। हम उनसे फिर मिलेंगे, बात करेंगे। बट आई थिंक व्हाट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट और मोर दैट इज़ टू मीट विद पीपल हु आर लाइक अस, जिनकी डेली जॉब्स हैं, जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, उसके साथ में फिटनेस प्रायोरिटाइज करते हैं एंड आर इक्वली बिजी सैटरडे एंड संडे वर्किंग आउट, प्लेइंग स्पोर्ट और समथिंग सिमिलर. And I thought that gives us so much relativity as well, isn't it? And so I thought we'll have someone with us who is very relatable, who is extremely fit. And when you see his routine and you see the reasons behind it, you will see why he is where he is. I'm speaking with Sandeep Chand today, who is a full-time working professional. He has done multiple marathons, finished half Ironman. He did the Comrades 99th one and is going back again for the 100th next year. He did Comrades in 8 hours 16 minutes. His PB for a marathon is 3:13, but it will soon be broken for sure, as you would hear from the conversation today. I think you and I will learn a great deal about his discipline, his consistency, but more importantly, how humble a person he is. Let's welcome Sandeep to the show and learn about his running journey, his fitness journey, his sport and his profession, and be a better sports person by the end of this conversation. Sandy, welcome to Run with Fit page. We've been speaking for a long time and finally we are speaking today, and I'm sure this will be a worthwhile conversation. Welcome. Thank you so much, sir, for having me here. To be honest, मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. I have been watching you since last approx a year, जब से आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया हुआ है. एंड मैं ये नहीं बोलूँगा इट वाज माय ड्रीम बिकॉज आई हैवंट अचीव दैट बिग यहाँ आने के लिए, बट आपने मेरे को यहाँ आने का ये अपॉर्चुनिटी दी है तो मुझे लगता है आई एम लिटरली ओवरवेलम्ड फॉर दिस. नहीं सैंडी, एवरीथिंग विल डिस्कस टुडे विल शोकेस कि व्हाई इट इज़ वर्थ दिस कॉन्वर्सेशन. I have seen your journey as well and your discipline. I think there is something for all of us to learn from, particularly me, because I always aim and I want to be fitter than where I am, and then I keep going back to saying कि time नहीं मिलता, बहुत stress है, बहुत काम है. And when I see you, you're equally busy and you are actually a lot more busy than most of the people, but you've still been able to achieve all of it. What you have done in the last few years, and we'll unravel some of it as we go through. But let's start from the very basic. Sandeep है कौन? सर मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से मैं बोलूँगा मैं बिलोंग करता हूँ. मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं एंड मैं उत्तराखंड के एक कुमाऊँ मंडल से बिलोंग करता हूँ. देर आर 2 रीजन्स इन उत्तराखंड, वन इज़ गढ़वाल, वन इज़ कुमाऊँ. मेरी अपब्रिंगिंग जो भी हुई है वो बहुत ही एक रूरल एरिया से हुई है. और मैं ये कहूँगा कि ये जो जर्नी मेरी फिटनेस बोलिए या वट एवर आई एम टुडे, इट स्टार्टेड फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग फेज ऑफ माई लाइफ. जब मैं 5 से 6 साल का था, सिंस आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो वो जो दिनचर्या लाइफ में है, वेकिंग अप अर्ली, डूइंग ऑल मॉर्निंग स्टफ एंड ऑल, वो तब से ही है सर. एंड यस, फ्रॉम दैट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई दिस लाइफ, वो फिटनेस के प्रति बोलूँ या वो दिनचर्या जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो तब से ही स्टार्ट हुई है. पता है, जब शुरू से हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि
वो कुछ कर रहे होते हैं जो हमें बहुत इंस्पायरिंग लगता है। अर्ली एज में हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स ही हमारे इंस्पिरेशन होते हैं, एंड आपके केस में ऐसा था कि आप देहरादून में थे, पापा आईएमए में इंस्ट्रक्टर होना एक वो पिनाकल होता है कि आप कैडेट्स और कैडेट ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हो। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, और उनके शूज़ को फिल करना और भी डिफ़िकल्ट होता है, राइट? सो इट्स ग्रेट कि आपने अर्ली एज से वो देखा और वहाँ से आपने शुरू किया। बट कब आपने फिटनेस की तरफ ज़्यादा रुझान देना शुरू किया? पहले तो जब हम बच्चे थे तो हम सभी खेलते थे, करेक्ट? यस। मतलब ये लगता था कि पढ़ना कम है, खेलना ज़्यादा है, एंड वी एंजॉयड आउटडोर स्पोर्ट्स, एटलीस्ट यू एंड आई। एंड बट हाउ डिड यू प्लान कि अच्छा हाँ मुझे ना इसको ज़्यादा सीरियसली करना है? बिकॉज आई हैव सीन फ्रॉम व्हाट यू हैव डन, आप एनसीसी में तो बाद में गए, बट उसके पहले फुटबॉल आप बहुत अच्छा खेलते थे शुरू से ही। तो क्या आपको फिट रहने के लिए खेलना था शुरू से, या था कि हाँ मुझे अच्छा करना है, या फिर और किड्स भी खेलते थे तो आप खेलते थे? फिटनेस बहुत बचपन से ही मुझे लगता है मैं आउटडोर रहा हूँ, पहली चीज़। बिकॉज जब एज ए मिडिल क्लास मैन मेरे पिताजी ने जब मेरे से जो एक्सपेक्टेशन किया था एज ए किड, 1996 में मेरे पिताजी मुझे मेरे गांव से देहरादून लेके आए, जस्ट विद दिस होप कि मैं आर्मी में एक सोल्जर हूँ तो मेरा बेटा आर्मी में ऑफिसर बने। सो फादर मुझे जब देहरादून लेके आए तो उन्हें लगा कि शायद मैं भी कल आर्मी ऑफिसर बनूंगा। बट तब से ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर स्पोर्ट्स का जो आप कह सकते हो वो पैशन था आउटडोर, वो तब से ही था। एंड देहरादून आने के बाद मुझे एक बार बहुत अच्छा एक इंसिडेंट भी याद है कि मेरी एक मौसी थी जो मुझे ट्यूशन दे रही थी एक बार, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। तो वो मुझे पढ़ा रही थी और बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो मेरी मौसी ने मुझे देखा कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो उन्होंने मेरे फादर को बहुत अच्छी एडवाइस दी थी कि भाई साहब आप इसको गलत ट्रैक पे रख रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है देहरादून में, आप एक बार इसको वहाँ पे एडमिशन कराइए, बिकॉज इसका पढ़ाई में जो इंटरेस्ट होना चाहिए इट इज़ नॉट देयर एट ऑल। ये बहुत ज़्यादा आउटडोर है और इसकी एनर्जी को अगर आपको चैनलाइज करना है तो यू हैव टू गेट हिम एडमिशन इन स्पोर्ट्स कॉलेज। बट मेरे फादर का वही ड्रीम जैसे कि एक आर्मी मैन का होता है, नहीं मैं इसको यहाँ स्पोर्ट्स खिलाने तो नहीं लाया हूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स में दैट टाइम इट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ा अचीव करना है। बट फिटनेस तभी से थी, मेरे फादर ने उसके ऊपर तो ध्यान नहीं दिया, बट येस फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग आई वॉज वेरी मच आउटडोर। मैं स्कूल में भी कई कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। एंड सिंस फादर मेरे इंस्ट्रक्टर थे तो उन्होंने वो जो स्टार्टिंग जो एक अपब्रिंगिंग या रेज करना एक बच्चे को, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना, ये आज का नहीं है, ये पिछले मुझे लगता है 22-25 सालों से। मैं कभी भी ऐसा दिन नहीं होगा कि जब मैं कभी मतलब बिफोर या आफ्टर सनराइज़ मैं कभी सोया हूँ या मेरे को ऐसा कोई बोले कि उठ करके। तो फादर मेरे 5 बजे सुबह जाते थे, लाइक वाइज द सेम ट्रेनिंग हैपन्स विद मी, मुझे वो 5 बजे उठा के जाते थे। तो वो जो मेरी स्टार्टिंग जो जर्नी है बीइंग अर्ली बर्ड, तो वो मेरी पिछले 25-30 सालों से है। तो वो जो जर्नी है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं स्कूल में आया, स्कूल में फिर मैं जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहती थी उसमें मैंने विद माय फुल होल हार्टेडली मैंने पार्टिसिपेट किया। हाउएवर आई कुडंट अचीव समथिंग वेरी बिग इन डिस्ट्रिक्ट लेवल और जोनल लेवल या नेशनल लेवल पे, बट फिटनेस के प्रति ये था कि हाँ आई नीड टू बी फिट। हमेशा इस चीज़ का मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही एक कॉन्सेप्ट रहा है। एंड आफ्टर दैट मैं आर्मी एस्पिरेंट रहा हूँ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जो एक जीडी सोल्जर होता है, फ्रॉम द सोल्जर लेवल टिल आर्मी ऑफिसर के लिए मैंने हमेशा अपने आप को एग्जामिन किया है, मैंने तैयार किया है। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लियर इट ड्यू टू मैनी रीजन्स। समटाइम्स आपको मेडिकली रेफ़र करते हैं और मैं जहाँ नहीं गया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिट हूँ, वाई आई कैन बी, वाई विल यू बी डिस्क्वालिफाइड। तो आई नेवर वेंट फॉर दैट मेडिकल रेफर। मेरे को ऐसा लगता था जब भी होऊंगा मैं 100% मतलब क्लियरली रिकमेंड होऊंगा विदाउट एनी अदर रीजंस, बट नहीं हो पाया। लेटर ऑन आई एंटर्ड इन माय कॉलेज में यस आई पार्टिसिपेटेड इनटू मैनी एथलेटिक्स इवेंट। मेरा 4x4 रिले रेस में रहा है मेरा, इवन आई वाज इन माय डिस्ट्रिक्ट, मेरा गोल्ड मेडल उसमें भी रहा है। जेवलिन थ्रो अगेन आई पार्टिसिपेटेड इन द यूनिवर्सिटी लेवल। And then I moved to NCC. And NCC में भी again you required a good level of fitness. Army, NCC?
Yes, Army Wing NCC from Okay. DAB PG College Dehradun, and which is again known the best NCC battalion in Uttarakhand. नेवी कहते तो मैं कहता मेरी बटालियन ज़्यादा अच्छी थी बट So again, that legacy of 3/29 Battalion NCC was like on our shoulder because हमारे जितने भी seniors थे, they all had got very big names, even in Rajpath, Delhi, और भी बड़े बड़ी जगहों में उन लोगों के बहुत अच्छे they people were recognized well. So from there, I started my again NCC journey. I was the senior under officer of that 29 Battalion NCC, and from there, मेरा professional journey अगर अब बात करूँ after NCC, there was again I applied. I was the aspirant of Indian Army officers. मेरी तीन SSB हुई हैं, ओहो and all the 3 SSBs I was rejected and conference तक गया, but yes, because of few things I wouldn't blame that शायद वहाँ से कुछ ऐसा गलत हुआ है. इट वॉज ऑलवेज आई फील कि आपके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग रहता है, बिकॉज ऑफ दैट यू गेट दैट फेलियर और रिजेक्शन फ्रॉम एनीवेयर. मेरे साथ भी ऐसा था कि मतलब मुझे लगता था कि हाँ मैं तो रेडी हूँ और मैं 1 यूपी नेवल एनसीसी में था, तो ये था कि हाँ आप अगर 1 यूपी नेवल एनसीसी में हो तो यू हैव टू बी द बेस्ट, और मुझे ऐसा ही फील होता था कि यार मैं कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता. एंड आई रिमेंबर गोइंग फॉर, पहले मैं टेक्निकल एंट्री में गया था, उसके बाद फिर CDS के थ्रू तैयारी कर रहा था, NCC एंट्री से गया, और जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट होता मुझे लगता है गड़बड़ हो कहाँ रही है, बट होता है राइट. मे बी यू डोंट हैव दोज OLQs इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट माई सेल्फ कि हाँ यू नॉट इनफ. दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग बैक देन. और फिर मुझे लगता कि अगली बार होगा, बट यू नो एज लक वुड हैव इट we both didn't go to armed forces, but we did our best wherever we could go. Yeah. And you've done phenomenally well. See, जो 5 बजे उठने वाली बात तुमने कही ना, कि जब मैं सवेरे उठता हूँ, मैं 5:30 के आसपास ट्राई करता हूँ डेली उठने का, और 6 बजे रन करने के लिए मैं जाता हूँ. मैं सोचता हूँ आज ना सैंडी के पहले मैं जाऊंगा भागने, और जब मैं 6 बजे उठने के पहले अगर मैं इंस्टाग्राम मैंने खोला तो उसमें लिखा रहता है 30 minutes ago सैंडी हैज़ पोस्टेड अ स्टोरी ऑन माई वे टू वर्कआउट. मैंने कहा यार ये बंदा कितना जल्दी उठता है कि मतलब, एंड इट्स बीन द केस विद यू सिंस आई नो यू. जब हम लोग मिले थे आज के 5 साल पहले, जब हम पॉडकास्ट से शुरू कर रहे थे, एंड व्हेन आई सॉ योर फिजिक एंड योर डिसिप्लिन, आई वाज लाइक दिस गाय इज़ फ्रॉम अनदर प्लैनेट. बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट, एवरी फॉर्म, हम पहले शूट भी करते थे जब अपने वर्कआउट्स के लिए, everything was just perfect, right? And so मुझे लगा there is something very special, and one of the things over a period of time we realized was your consistency. You've gone through a lot in your life. I have still not seen you missing your workout even for a day, right? मतलब जब भी मैं सवेरे देखता हूँ, one thing is consistent. You are either playing football or in the gym or running or in a race, and you have had a fantastic run. So more than anything else, before we get further in detail, I would say well done. And Thank you, sir. we'll get into some of those, particularly endurance sport that you have been at with a full-time, very demanding job. Let's go through your running journey. But उसके पहले, for people's understanding, let's also understand कि आप फुल टाइम काम क्या करते हो, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू नो कि आपको 24 घंटे से फिटनेस पे फोकस नहीं करना है टू स्टे फिट, बिकॉज यू हैव अ डे जॉब विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब. एब्सोल्युटली सर. जैसा मैंने बताया कि आफ्टर दिस कॉलेज व्हेन आई कुडंट रिकमेंड फॉर इंडियन आर्मी, देन देयर वाज वन होप फॉर अस, which is, you know that, Reliance. that is Reliance only. I got the chance to be the part of Reliance Security as Reliance RGSS is the name, Reliance Group of Support Service. So in 2010, and even that was my last attempt for Reliance as Is well. it? Yes. Huh. I was working in Jaipur, as I told you earlier that I was there. So that was the last attempt of mine for the security executive in Reliance. So luckily I selected for that, and my training, just the way you also
did everything there. Yeah, So yeah. for 4-5 months, you rigorously train yourself in that Lodhiwali Patal Ganga township. Correct. So from there, I started my professional journey in Reliance, because before that I was working in hospitality industry. Right. So from there, अगर मैं बोलूँ तो मेरे जीवन जो प्रोफेशनल करियर है वो रिलायंस सिक्योरिटी ऑफिसर से स्टार्ट हुआ. आई एम द 12th अल्फा बैच RGSS ऑफिसर. मैं 4th था. यस, अभी 33rd रिसेंटली पास हुआ है. तो मैं 12वीं 12th अल्फा से हूँ. अच्छा. एंड मैंने कम से कम 13.5 years एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम किया है. एंड आई हैव बीन पोस्टेड इन डिफरेंट लोकेशंस all across India. And after that, I was the part of Chairman Security as well for quite a long time. Yeah. पहले उसको EPG बोलते थे ना? Yes, it is right now. Again, it is EPG only, Elite Protection Group. Right. So I was in a very close proximity of Apex family. Right. And in 2020, I was working with them only. और 2020 में this Vantara emerged. Right. And from there, from the security background, I shifted to this Vantara. And यहाँ पे as a, you can say that admin in charge or management, as a management, I have been working from last 4-5 years. And yes, again, this is a full-time job. And since you are dealing with the animals, so you have to be always there on ground for their enrichment, for their good health. People who are working with them, you need to take care of them, their hiring, their salary. Veterinarians we have. Yeah. So everything you are looking after there, and you have a big responsibility since you have been given that task. Yeah. So it is not something there is any off. And with this, yes, of course, you need to remain fit mentally or physically. So here currently I am being assigned with one special task which is called RCCU, Reliance Combat Canine Unit. Yeah. This is a working line dog training portfolio, you can say, that I'm having over here. I'm the in charge of that right now. Pan India, we are deploying our canines in all the vital locations of Reliance, be it Apex Family House, be it Maker Chamber, or be it any official, any big plant, refinery, wherever they are, because right now, other than your physical security, canine deployment is must. So they are somewhere giving you enhancement in your security. So the people around me in my team, they need to be fit first of all. If you are really training working line breed, and your physical fitness has to match with them. Yeah. Because we are dealing with very, very ferocious breeds right now, and they are literally challenging if you are not fit. So for that, आपको सुबह से शाम तक पहले खुद को आपको fit रखना है. Correct. Just to match up their energy. Yeah. So I am fortunate that whatever my this long journey of fitness, my outdoor passion, my sports एटीट्यूड यू से विच आई एम टेलिंग यू दैट मैं बचपन से ही ये इन सब चीज़ों में एक्टिव था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आई एम एट अ राइट प्लेस. द टाइप ऑफ प्रोफेशनल वर्क आई वांटेड फॉर, मुझे लगता है वो मुझे मिला है. एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कैन फुली शो माई पोटेंशियल थ्रू डूइंग इट ओन एंड थ्रू मेकिंग माई पीपल अराउंड डूइंग द सेम थिंग. तो अर्ली मॉर्निंग द सेम जर्नी वी डू दैट. अर्ली मॉर्निंग हम लोगों का खुद का टीम का इंस्ट्रक्टर्स वी हैव अराउंड, एंड आज के टाइम में मेरे पास 350 हैंडलर्स, अप्रॉक्सीमेटली 450 डॉग्स, एंड ऑल द इंस्ट्रक्टर्स हु हैव सर्व्ड एटलीस्ट 15-20 years in Indian Army, paramilitary, they people are working with me. Right. And yes, of course, if you are leading the team, first of all, you need to be fit. Yeah. If you want them work, they will definitely look towards you that whether my leader is fit, or if he is saying something to us to do, is he capable of. Yeah. So to be honest, जैसा कि अभी आपने बात की कि सुबह का जो ये मेरा जो रिजीम रहता है टू वेक अप अर्ली, टू बी देयर विद द टीम, तो ऑफ कोर्स मुझे करना पड़ेगा. बिकॉज आई डोंट वांट टू लेट डाउन माय टीम, बिकॉज उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार यस ही इज़ जस्ट इंस्ट्रक्टिंग अस फ्रॉम होम. So I need to be there on ground with them, shoulder to shoulder, every day, without a single day break. So through this, मुझे लगता है they drive, they take you as a whatever way they want. Yes, if I am leading, then definitely I have to prove them, yes, I am the leader of yours, because
अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि आपको सुबह उठ के यू नीड टू रन दिस मैनी किलोमीटर्स या आपको ये टारगेट इतने मिनट में अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले वो देखना है कि आप कर सकते हो क्या वो चीज़। तो आई डेफिनेटली टेक दिस फंडा विद मी। मैं हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ कि इफ़ आई एम ऑर्डरिंग समबडी टू डू समथिंग, हैव आई एवर डन दिस और एम आई कैपेबल ऑफ डूइंग दिस? सो दैट ऑलवेज दैट थॉट कम्स इन माई माइंड एवर इफ आई एम सेइंग एनीथिंग टू एनीवन। मुझे लगता है कि सबसे पहले क्या मैं उस काम को करने लायक हूँ, बी इट ट्रेनिंग, बी इट रनिंग, बी इट एनीथिंग। सो यस, इफ़ आई गेट द आंसर यस मैंने ये किया है या मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर लूँगा, तो मैं दैट वे आई ड्राइव माई सेल्फ। No, I agree, and showing by doing is one of the most effective ways of leading as well. कि अगर आप उनको दिखा के कि कैसे करते हैं अच्छी तरीके से and being the example practically, अगर आप वो कर रहे हो, they feel inspired, and I have seen in your team of what I have met them in different races. मतलब मुझे देख के I feel so proud कि मतलब super disciplined kids, super fit kids, वेरी हम्बल एंड मतलब वो जो कॉमरेडरी होती है जो RGSS की, जो एक्चुअली एक डिसिप्लिन लॉट की होती है, दैट इज़ वेरी विजिबल एंड इट जस्ट शोज़ के मतलब वो इतने यंग हैं और वो जो फिटनेस है उनकी, इट्स अ फंक्शन ऑफ द बीइंग लेड वेल. सो गुड जॉब देयर अगेन. नाउ लाइक यू सेड कि योर जॉब इंक्लूड्स बीइंग ऑन योर फीट ऑलमोस्ट ऑल डे, राइट? सुबह से लेकर रात तक भागते रहते हो with such agile, fit dogs, animals. उसके साथ साथ आपने जो अचीव किया है endurance sport में, for example, more than 13-14 years you've been running the marathons. Recently, earlier this year in TMM, you did 3:13. Later, Comrades, you did 8:16. And all of that you have done while working full time, as you said कि उसमें कोई भी दिन ऑफ नहीं होता है. एंड यू आर नॉट अ टिपिकल रनर. Like we've seen your physique. You are a great example of being very fit, strength wise and endurance wise both, right? I have no idea how you maintain your 8 packs, and I think थोड़े secrets हम लोग समझेंगे कि मतलब खाते क्या हो, कैसे रिकवर करते हो. But tell me your running journey. आपने भी recently Comrades किया. How did you train? How do you actually generally train? Do you have an off season, on season? You take up a goal, go after it, because आपने half Ironman भी last year किया 5:17 में, if I'm not wrong. And so you have been doing all of these while working full time 7 days a week, right? And going through so many things in life as well. How do you manage all of it, buddy? मैं 2023 से पहले I used to run just for fitness. Okay. जस्ट माई डेली मॉर्निंग मेरा रूटीन रहता था. वन डे जिम, वन डे आउटडोर, वन डे स्विमिंग, जस्ट लाइक दैट. बट 2023 के बाद व्हेन आई थ्रू वन ऑफ माई म्यूचुअल फ्रेंड आई मेट Dr. Yogesh Satau. I really want to quote his name over here because I think whatever I have achieved in last 2 years, credit definitely goes to him as well. Nice. And I will not deny this. He's the coach of Runholics. Yes. He is a Pune-based guy. Right. He himself is a pediatric surgeon. And one of my mutual friend, he is a veterinarian with us. Okay. His cousin was in his group, Runholic group. So somehow I also got chance to enroll myself in his group. वहाँ से मुझे ट्रेनिंग का पता चला. टू बी ऑनेस्ट, बिफोर दैट आई ऑल्सो यूज टू सिट टॉक विद द एथलीट्स, बिकॉज मैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून से भी कई एथलीट्स को जानता था कि हाँ, एक दिन टेम्पो रन होता है, एक दिन रिकवरी होता है, एक दिन आपको इंटरवल्स होते हैं, एक दिन फार्ट लेग ट्रेनिंग होती है, सम डे यू नीड टू गो फॉर रिकवरी रन, एंड वीकेंड में आपको लॉन्ग रन करना होता है. दैट वे यूर दिस ऑल रनिंग का वीकली शेड्यूल बनता है. बट आफ्टर दैट वंस आई एनरोल इन हिज ग्रुप, एंड वहाँ से मुझे एग्जैक्टली मोटिव मिला. पहली चीज़, टू रन ऑल बिग इवेंट्स जस्ट लाइक TMM और Comrades, बिकॉज देर वर ऑलरेडी मैनी पीपल इन हिज ग्रुप जो कि ऑलरेडी Comrades कर चुके थे, एंड ही हैज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक प्लान फॉर द रनर्स. He himself is a sub-3 marathoner. He himself is an amazing athlete and very humble guy, to be honest. He never make things complicated. बहुत ही simple, and you know that these days बहुत सारे ऐसे fitness coaches हैं
जो आपको बहुत फैंसी चार्ज करते हैं, एंड ही इज़ द गाय हु नेवर से दिस। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोगों को आज के टाइम में बहुत कम है लोगों के पास, बिकॉज एवरीबडी इज़ देयर टू मेक unnecessary money or something, I would say, but he is the guy who is totally focused on your performance and very very minimal charges of his group, which where he maintains everything. I mean yearly आपको एक टीम मीट्स होती हैं और उसके बाद सेलिब्रेशन होता है एंड ऑल दैट। तो वहाँ से 2023 में व्हेन आई केम इन कांटेक्ट विद डॉक्टर योगेश सताव, हिज ट्रेनिंग प्लान ही शेयर्ड विद ऑल ऑफ अस, वहाँ से मुझे एक सिस्टम पता चला कि यस दिस इज़ द मेथड ऑफ रनिंग। अगर आपने मंडे को रन किया है नॉर्मल रन, तो ट्यूसडे यू विल गो टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेंसडे आपका स्पीड वर्कआउट होगा, एंड थर्सडे आपको एक इजी रन के लिए जाना है। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ट्रेनिंग, टू बी ऑनेस्ट। उससे पहले ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डाइट का पता था, बिकॉज आई वॉज वेरी रॉ एंड स्टिल आई एम वेरी रॉ, और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड किसी भी तरीके से नहीं रखता हूँ इन टर्म्स ऑफ माई फिजिकल फिटनेस एज वेल। मुझे इतना पता है बहुत सिंपल शब्दों में कि आपको जितनी भी कैलोरी आपको कंज्यूम करनी है, आपको लगता है तो आपको वो बर्न भी करनी है। दिस इज़ माई सिंपल फंडा। मैं बाकी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, ना तो मैं स्पोर्ट्स साइंस को इतना जानता हूँ, बस मेरे को पहले से ही इतना पता था कि यस यू नीड टू लुक गुड, फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। और अगर मैं बात करूँ तो आई हैव अब्यूज्ड अ लॉट टू माय बॉडी। अच्छा। बिकॉज मुझे नहीं पता था कि बॉडी को आपको कैसे ट्रेन करना है। सिंस आई वॉज यंग, तो उस समय थकान, फटीग और रिकवरी कुछ नहीं मालूम है आपको, बस डेली बट डेली हाँ यस। तो मुझे इतना पता था कि हाँ डेली मॉर्निंग यू हैव टू गिव योर सेल्फ 2 hours, नो मैटर वट एवर यू आर डूइंग, यू पुट योर सेल्फ इन टू दैट जोन जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ आज सुबह का वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है। तो 2023 से पहले और बाद में यही एक फ़र्क रहा है कि आफ्टर दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम, और ही सपोर्टेड मी रियली वेल। जितने भी अपकमिंग इवेंट्स थे, ही यूज्ड टू गाइड अस अबाउट दैट, और under his guidance only and all my PBs I achieved all after coming in the that Runholic group. Nice. So this is all about my. Very good. That's fantastic. That and I think that also underlines the importance of having a good coach, जिससे एक structure, एक system पता चलता है, and उससे एक रियलिस्टिक गोल भी सेट करने में मदद मिलती है। अर्लियर इन द ईयर यू डिड 3:13 इन द मैराथन। मुंबई का रूट ऐसे ही टफ है, ह्यूमिड है, तो वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग दौड़ते हैं, और उसके साथ में यू हैव इंक्लाइंस। अभी विद द न्यू रूट दैट हैज़ बिकम ऑल्सो यू रन अलोन अ लॉट मोर देन द सपोर्ट ऑफ पीपल। 3:13 करना इज़ अ ग्रेट फीट इन माई ओपिनियन। आपने क्या ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा माइलेज आपने बढ़ाया, डिड यू देन लूज मसल, या फिर आपका माइलेज कंट्रोल्ड ही था एंड यू जस्ट वर रनिंग लिटिल मोर देन व्हाट यू वर रनिंग बिफोर? कैसे, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? ऑब्वियसली माइलेज ज़रूर मेरा इंक्रीज़ हुआ है आफ्टर वंस आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऑल यू कॉल इट वर्ल्ड मेजर्स और बिग मैराथन्स, बिकॉज उससे पहले तक मेरी ट्रेनिंग सिस्टमेटिक नहीं थी। आफ्टर गिविंग ऑल हिज वीकली और मंथली प्लान्स, आपको हफ्ते के अंदर, वीक के अंदर आप अप्रॉक्सीमेटली 85 to 90 टच करना ही होता है वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फुल मैराथन। और उससे पहले बिल्कुल भी माइलेज ऐसा नहीं हो रहता था। 40 और 45 से मैं आगे कभी भी नहीं गया। सो इफ़ आई से यस, इफ़ यू आर गोइंग बियॉन्ड 21 किलोमीटर, तो माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग में वेरिएशंस कितने करते हो आप, क्योंकि आप डेली एक 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो विद सेम पेस, विद सेम सॉर्ट ऑफ अ रूट, आपका इम्प्रूव नहीं रन होगा। आपको रनिंग के लिए जो मैं सीखा हूँ पिछले 2-2.5 सालों में, इट शुड बी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है रन में। डेली आप एक जैसी रन दौड़ के अपने न तो आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, ना आप वो पेस पा सकते हो। इसके चलते मैं उनके रनिंग प्लान्स को फॉलो किया है, और उनके रनिंग प्लान्स के हिसाब से ही मैंने पूरा का पूरा पिछले 2.5-3 साल वट एवर ही सेंड अस फॉर द वीक टारगेट, वो मैं फॉलो करता हूँ। और वो माइलेज है, ऑब्वियसली इट इज़ अगेन माइलेज विद वैरायटी ऑफ ट्रेनिंग, नॉट ओनली माइलेज के अलावा
उन्होंने काफ़ी चीज़ें ध्यान दी. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वो हमेशा हम लोगों को रिकमेंड करते हैं. वीकली एटलीस्ट 3 टाइम यू हैव टू हिट द जिम, Okay. बिकॉज वो मसल मास जो आप बता रहे हैं कि लॉस होता है, इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज एट दैट वेरी फटीग मोमेंट, जब आप 35 किलोमीटर क्रॉस करते हो, व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर बॉडी, Yeah. obviously that time your muscles really helps you well. If you have strengthened well, आपको वहाँ पे वो strength exercises काम आती हैं. Right, right. तो yeah, that way. No, for sure. तो जब आप मुंबई के लिए तैयारी कर रहे थे, फॉर एग्जांपल, एंड नाउ इज़ द टाइम जब लोग मुंबई के लिए ऑलरेडी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, बिकॉज इट्स इन जनवरी, अ फ्यू मंथ्स अवे. डू यू रिमेंबर हाउ डिड यू गो अबाउट इट? मतलब एक टिपिकल बेस वीक वर्सेस पीक वीक कैसा था? मतलब कितने दिन आप रन कर रहे थे? आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताया करीब 3 दिन कर रहे थे, विच ऑल्सो आई थिंक इज़ योर इंटरेस्ट, यू लव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एनी वे. बट हाउ वाज योर टिपिकल वीक ट्रेनिंग में? जैसे ही रनिंग सेशन स्टार्ट होता है, आई मीन आफ्टर सितंबर ऑल दिस रनिंग इवेंट स्टार्ट्स, तो उससे पहले तो ब्रेक टाइम ही रहता है ऑलमोस्ट. आफ्टर सितंबर दे ही गिव्स अस अ प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान कि नाउ इवेंट्स आर कमिंग, सो यू बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ, एंड वो ग्रेजुअली ही जाते हैं. आई मीन फर्स्ट वीक ही नेवर गिव यू दैट स्पीड वर्कआउट सेशंस और हार्ड इंटरवल, वो कभी नहीं देते हैं. ग्रेजुअली हम लोग जैसे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये बोलते हैं कि भाई आप क्या टारगेट कर रहे हो, ठीक है, विच रेस यू आर टारगेटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट लाइक आप सिर्फ दौड़ रहे हो, तो ही नेवर एंटरटेन्स देम. उनका 2 ग्रुप हैं. वन इज़ फॉर एलीट्स, आई मीन एलीट्स, नॉट आई एम सेइंग elites means who are running their full marathon sub 4 hours, ठीक है, or who are 330 serious, recreational, Yes. serious runners. So for the runners who are really serious for their timings, their PBs, तो उस हिसाब से वो प्लान करते हैं. एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे रेस आपकी क्लोज आती है, देन द इंटेंसिटी इंक्रीज. तो उनके प्लान्स भी उस हिसाब से फिर वो वीकली माइलेज से बढ़ाने से लेके इंटरवल सेशन का टाइमिंग तक और एवरीथिंग. आई मीन योर रिकवरी सेशंस, आपके प्री वर्कआउट्स क्या होने चाहिए, आपके पोस्ट वर्कआउट क्या होने चाहिए, प्रोटीन आपको किस क्वांटिटी में लेना है, ऑल दीज माइन्यूट थिंग्स ही कीप ऑन शेयरिंग विद अस. Training and nutrition both. Both. Okay. Most of the people in that group are doctors, so they are well educated and they are well aware about their diets and other macronutrients and micronutrients, what other supplements we should take for the recovery and better performance. तो ये सारी चीज़ें ग्रुप में शेयर होती हैं and which helps us a lot. एंड जैसा बताया कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जैसे जैसे इवेंट्स क्लोज आता है, उस हिसाब से ही कीप्स ऑन चेंजिंग द प्लान. एंड जिसका जो प्लान है, एंड ही इज़ वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट द रेस इवेंट्स. इफ सपोज वी आर 300+ people right now in the team, and most of them are doing some other races. Some of them are doing triathlon, some of them are doing some world majors in Berlin or some other country. Some are preparing for the Tata Ultra. तो वो उस हिसाब से वो अपना ट्रेनिंग प्लान्स बनाते हैं कि फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, दिस रेस, यू आर सपोज टू फॉलो दिस प्रोग्राम, फॉर दिस रेस ये प्रोग्राम फॉलो करना है. लाइकवाइज. हाउ वुड यू सजेस्ट एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू पीपल जो अभी ये पॉडकास्ट देख के या सुन के वो सोच रहे हैं हाँ उनको भी ट्रेन करना है? सी इन योर केस वन ऑफ थिंग्स वाज यू वर वेरी डिसिप्लिन फ्रॉम स्टार्ट. यू वर आउटडोर, यू वर फिट, एंड बट रनिंग में particularly marathon में you may have been beginner for some time but very quickly you picked up because you had fitness. अगर कोई मान लीजिए इतना फिट नहीं है, हो सकता है बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ रॉ पीपल कमिंग इन योर ग्रुप करंटली RCCO में भी. आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे शुरू करें? कैसे, हाउ डू दे फॉर्म दिस हैबिट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, जस्ट गेट अप एंड गेट आउट? एंड दिस वाज वन ऑफ द की टॉपिक्स आई वांटेड टू डिस्कस. उसका रीज़न ये भी था कि सब कुछ हो जाता है, यू इवेंचुअली बिकम बेटर इफ़ यू आर एट इट फॉर अ लॉन्ग इनफ टाइम. अगर आप बीच में ऑफ ऑन ब्रेक कर रहे हो, छोड़ रहे हो, मोटिवेटेड नहीं कर रहे हो, तो नहीं होता है. एंड टू बी एबल टू बी फिट एंड बी एट इट, one of the most important things is to be consistent, and it's very hard. People find different reasons. Life happens, बहुत सारे issues आते हैं, and you are like,
ठीक है नहीं करेंगे, राइट? एंड इन इंडिया पर्टिकुलरली फिटनेस इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मोस्ट पीपल, राइट? सो व्हाट वुड यू से कि अगर कुछ लोग देख रहे हैं जो इस इशू से स्ट्रगल करते हैं कि हाँ मैं कंटिन्यूसली नहीं वर्कआउट कर पा रहा हूँ, चाहे जो हो, चाहे वो रनिंग हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग, कुछ भी हो, एंड यू आर समवन आई थिंक इज़ वेरी सूटेबल टू टेल हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट फॉर 30 years, राइट? कैसे कराओगे? बहुत लेमन भाषा में मेरे लिए ऐसा लगता है कि विदाउट एनी डाउट सबसे पहले सेल्फ मोटिवेशन है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगता है प्रायोरिटीज़ नीड्स टू बी सेट इन लाइफ। तो अगर मेरे लिए प्रायोरिटी एक्स चीज़ है तो नो मैटर व्हाट मैं उसके लिए टाइम निकालूंगा ही निकालूंगा। 24 घंटे सभी के पास हैं एंड नो वन कैन से कि मेरे को टाइम नहीं मिला। आपकी फेवरेट चीज़ के लिए 100% आप ना चाहते हुए भी टाइम निकालोगे। तो सेम चीज़ है, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द फर्स्ट प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर एनीथिंग, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स। आपको मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलता है। मैं भी अगर बात करूं तो वीक में 7 days होते हैं, नॉट एवरी सिंगल डे आई गेट मोटिवेशन। मैं मेरे यहाँ से मेरा वर्क जो स्टेशन है इट इज़ अराउंड 27-28 किलोमीटर्स एंड मैं सुबह अगर उठ रहा हूँ एंड आफ्टर दैट इफ़ आई एम ड्राइविंग टू माई दैट पर्टिकुलर लोकेशन, उस 27 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जो मुझे डीमोटिवेट करती हैं। अगर आज मेरा सपोज स्पीड वर्कआउट है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे को वडाला से आरसीपी जाने तक वो स्पीड वर्कआउट मेरे को नहीं करने का मन करता है। राइट। मुझे लगता है मैं वो 1 किलोमीटर के 8 इंटरवल और 3:55 या 4 की पेस से कैसे मार पाऊंगा, बिकॉज वो 27 किलोमीटर में आपकी बॉडी एक तो डाउन हो जाती है, ड्राइव करके जा रहे हो, कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन माइंड। तो वो जो चीज़ है वो वहाँ पे आपका सेल्फ मोटिवेशन बोलिए, आप सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है कि नो मैटर व्हाट you have to make your mind that strong that it should not divert anywhere। मन गाड़ी से बाहर निकलते वक्त भी मेरा मन करता है चलो यार आज इजी रन ले लेते हैं, लेट्स गो फॉर स्विमिंग। लेकिन जब वहाँ पे आप ब्रेक करते हो दैट बैरियर कि आपका माइंड और मसल एंड माइंड एंड बॉडी कनेक्ट करना, देयर यू आर अ विनर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई अब्यूज़ अ लॉट टू माई बॉडी। मुझे शरीर को आराम देना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज बोथ ऑफ देम वर सो स्ट्रिक्ट इन लाइफ, जिन्होंने मुझे कभी इस तरीके की फीलिंग्स नहीं होने दी कि भाई लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से मिलती है। एंड मैंने खुद से जीवन में ये सीखा कि आप किसी भी जगह पे हो, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक एनी फील्ड यू आर इन टू, इफ़ यू आर लिटरली कमिटेड, इफ़ यू आर रियली हार्ड वर्किंग, no matter what, छोटा बड़ा, anything, any platform, you will be recognized one day. So मैं यही अपनी टीम को भी wherever I am right now working with people, I keep telling them just efforts. Efforts is the most important thing. मेरा whosoever listening me right now, मेरा सबसे एक ही यही कहना है कि आप just start thinking about whatever you want to do in life first of all, and अपने एफर्ट्स, नो मैटर आप सुबह 1 किलोमीटर जा रहे हैं या 10 किलोमीटर जा रहे हैं, एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। आपके या मेरे हिसाब से, किसी के भी हिसाब से एफर्ट्स होने चाहिए। अगर मेरे एफर्ट्स आज 4 मिनट पर किलोमीटर की है, तो मुझे वो एफर्ट्स कहीं ना कहीं करने पड़ेंगे। आपको एक आजकल मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट वाला एक बहुत आजकल ट्रेंडी वर्ड चला हुआ है, विच आई लिटरली फील एंड आई रियली एडमायर दैट वर्ड। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू कीप योर बॉडी इन दैट डिस्कम्फर्ट जोन वेयर यू बेयर दैट सॉर्ट ऑफ अ पेन। कंफर्ट जोन से यू कांट अचीव एनीथिंग। आई एम राइट नाउ सिटिंग वेरी कंफर्टेबली, बट आई कैन इमेजिन कि क्या मैं इस पोजिशन में विदाउट चेयर, इफ़ आई कैन सिट फॉर next 2 minutes or 3 minutes, that I need to have that confidence within myself and my body has to be that way. तो मैं सबसे यही एक चीज़ मेरा कहना है कि prioritize things in life first of all, right, and distractions are many, no matter what, आपको नहीं आप उन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो in life, but आपको set करनी पड़ेंगे अपनी priorities life में। and you won't believe, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि Instagram में तब आया जब मैंने फिट पेज को ज्वाइन किया था एक बार, बिकॉज यतीश टोल्ड मी, डोंट यू हैव इंस्टाग्राम हैंडल? मैंने कहा नो आई डोंट हैव।
That very day I You created Instagram. created my Instagram. And Instagram is again a great way to see people around, how they are doing, what all their achievements, how they are training their self. But again, Instagram, Distraction, big distraction. it's a big distraction. Yeah. Whether I should say or not, but मुझे लगता है कि आपको जितनी भी ये डिजिटल और सोशल चीज़ें हैं, whether it is any platform, you have to use them wisely. Yeah. अगर आपको वाकई में कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन होना है तो ये डिस्ट्रैक्शन को आपको लाइफ में एक टाइम के बाद कट करना जरूरी है. यू हैव टू सेट सम लिमिट्स. ये दो चीज़ें मुझे लगता है लाइफ में है. प्रायोरिटाइज करना चीज़ों को सबसे पहले, एंड सेल्फ मोटिवेशन. आप किसी भी मोटिवेशन मतलब जो भी आपके मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, और मुझे लगता है कि आप एक टाइम तक उनको सुनते हैं, एंड दोज ऑल थॉट्स एंड दोज ऑल शेयरिंग्स जस्ट फेड आउट. आपको एट द एंड अपने आप से बातें, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आप खुद होने चाहिए वहाँ पे. दिस इज़ व्हाट आई only can say to the people. No, I think, and it's very practical, honestly. Self-motivation, while it sounds very philosophical and very run down in the same way, because people think हाँ self-motivation होना चाहिए, but हो ही नहीं रहा है. But there is no other way. अगर आप नहीं, if you don't find motivation, if you don't find doing the same thing every day, boring thing, and just do it as it's your framework, you have to follow it, and if you don't be at it, you will not get there. And I also, one of the things I always say कि not valid for all but for most people is कि अगर आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है, check your screen time in your phone. If it's more than an hour, there is definitely you can do to improve it, right? अगर किसी का screen time 5 घंटे per day है, 4 घंटे per day है, there is something definitely missing, unless that's your work, right? So I totally agree with you. And I also think for us to be consistent, for us to be fitter, I don't think it's very difficult. You don't have to be Sandeep, right? हर आदमी संदीप नहीं बन सकता है, right? But you can definitely be better than where you were if you just take out 30 minutes, if you just take out 45 minutes, right? I was telling you, हमने एक छोटा सा पुल अप बार लगाया है. जब से हमने लगाया है, कुछ नहीं तो लोग लटके तो रहते हैं, right? And I was very happy to see कि 8 से 9 लोग, करीब 10 लोग कंपनी में ऐसे हैं जो भी 10 पुलअप एक बार में कर पाते हैं. एंड आई हैव सीन पीपल की, मतलब फर्स्ट पुलअप तो सबका हो जाता है, जो कि नहीं पॉसिबल था पहले. एंड सो मेक एनी प्रोग्रेस, बट मेक वन. अनलेस यू स्टार्ट, आप लटकोगे नहीं, राइट? एंड अनलेस यू हैंग, यू विल नॉट गेट योर फर्स्ट पुलअप. सो वेरी वेरी गुड पॉइंट्स. अभी कहाँ जा रहे हो? क्या करना है नेक्स्ट? What is your next race? What are you planning? For now, the immediate one is Adani, which is on November. Yeah. And after that, TMM, I already have registered. And full? Yes, full. And after that, yes, 2027 is the 100th edition of Comrade. Yes. So nice. Again, I'm planning for that 100th edition. I want to be the part of that, obviously. So I'm hoping for all these 3 events. And break the 8 hours. This time it is going to be downhill. So Okay. I'm believing that maybe, because last time जो हुआ था, I was really going well. और मैं expect कर रहा था कि yes, the way I'm going, मुझे लगता है मैं 7 hours 55 minutes और sub 8 कर लूँगा. But unfortunately after that 65 or 70 kilometer थोड़ा सा मेरे को I started getting cramps. And after that, once you start getting cramps, then your complete pace, your mindset, it all gets changed. Yeah. फिर मुझे थोड़ा सा हर जगह पे आइस लेना, उसके बाद मुझे स्प्रे करना, and I started running and walking. Okay. Due to which these all 17-18 minutes extra I took. Otherwise I was really going good. But yeah, again it is a learning for me, because I don't know how it happened, because मेरा हाइड्रेशन वगैरह सब कुछ सही चल रहा था. मतलब I was very much monitoring about my hydration part, कब कितना कहाँ पे जेल लेना है, and सब कुछ चल रहा था. But it is again, never know कब कौन सी चीज़ कहाँ पे हो जाती है. But these all 3 events right now I'm in my bucket list. I'm hoping that, let's see, whichever, I'll try my best to get the PB again, any of these 3 events. Nice. No, well done so far, and I think you have had a great journey, and
Someone like you, I think it's very important for us to know your background, to appreciate what you have achieved, and that is why I thought this conversation makes so much sense. Because look, बहुत सारे लोग achieve करते हैं, they run a lot faster in different ways and sports, because that's their only job possibly, or most of it. You are one of the people who has a full-time, very, very hardworking job, very stressful job, and at the same time, you are able to achieve based on your discipline, of course, talent, but I think discipline precedes talent almost always, and I feel through this conversation, a lot of people will find value in being consistent. And I think to know more about you, they must visit your Instagram, because I mean, when people see your physique, is just ideal. At times I felt कि क्या तुम मतलब हर सीजन में हर साल इतने ही फिट कैसे रह रहे हो, but I see your consistency and I believe it. So good job, and keep inspiring, keep running, keep loving animals as you do, and we'll be in touch. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन फॉर हैविंग मी हेयर. जैसा मैंने पहले बताया था कि आई हैवंट अचीव मच in life, but even after that, if you have given me chance to come over here to share this platform with you, ये मेरे लिए it's a big thing for me. If अगर कोई मुझे बोलता है कि हाँ 2026 की achievements क्या हैं, तो this is one of that achievement I would really count, and thank you so much for this. And yes, of course, I'm honored, और मुझे लगता है कि मेरी टीम जितना भी आपको फॉलो करते हैं, they will definitely gonna learn something from here. एंड एक मेरे बहुत पुराने मेरे फादर के दोस्त थे, तो उनका वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ही था उनका भी, तो उनका एक कहना है कि फॉर एनी स्पोर्ट्स यू नीड टू बी 70% यू नीड टू बी फिट फर्स्ट ऑफ ऑल. 30% स्किल्स आप ले लेते हो फ्रॉम एनी कोच और समथिंग. सबसे पहले यू नीड टू बी शेप अप फॉर एनी स्पोर्ट्स. सो दैट फंडा आई ऑल्सो इनकलकेट इन माई डेली ट्रेनिंग, एंड आई एम इन टू ऑल स्पोर्ट्स. मेरे लिए रनिंग is passion, you can say that, but I love sports. Right. And इसी के चलते मैंने अपना वीकेंड का जो रन मेरा संडे लॉन्ग रन हुआ करता था, आई शिफ्टेड इट ऑन सैटरडे, बिकॉज संडे को हम फुटबॉल खेल सकें. हाँ, you told me yesterday कि आज सुबह फुटबॉल खेल रहे. So because sports gives you something which any other sport anything else doesn't give. Yeah, because वहाँ you see teamwork, you see yourself in some other zone, जो कि आप एकदम ऑल आउट जाते हैं, फेयरलेस जाते हैं, यू सी योर पोटेंशियल्स, एंड येस ऑफ कोर्स आपकी हर चीज़ डेवलप होती है वहाँ पे. योर रिफ्लेक्सेस, योर फ्लेक्सिबिलिटी, योर मोबिलिटी. सो अदर देन रनिंग, मुझे लगता है वन हैज़ टू ऑप्ट एनी स्पोर्ट्स इन लाइफ जस्ट टू मेक योर सेल्फ मोर फ्लेक्सिबल इन लाइफ. एंड येस ऑफ कोर्स यू आर इन टू टीम गेम, you gel up with the team, you get to know better people around you with that team sports. This is what exactly, and finally I want to say, and thank you so much for having me here, sir. No, fantastic. An honor. No, fantastic, and yeah, we'll keep running together, keep meeting, and keep clapping for you as you grow farther and faster. Good job. Thank you, sir. Thank you so much. That was all for today. I hope you enjoyed as much as I enjoyed speaking with Sandeep. You can, of course, look him up on his Instagram profile and see the perfect physique that he carries, see the hard work that he has put in to get there, and how he stays there consistently 1 year after other. And by the way, if you are one of the subscribers of FitPage and you have been going through our programs, you would have seen one super fit model who has been working out in most of the videos. That's Sandeep, for your information. That was all, and I'll speak with you guys next week again. Bye.